चलो भाई, हीरो मी, you should assume that today's date is 1st of September 2025. You an ACCA student working for a firm of accountants. Your manager has asked for your assistance in drafting notes in preparation for a meeting with Hiromi in relation to her personal tax affairs. Ah, okay. चल भाई, उसके पर्सनल टैक्स अफेयर्स के बारे में अपने को बात करनी है। चल भाई, एग्जिबिट 3, extract from an email from your manager dated 1st of September 2025. I need you to prepare some notes for internal use prior to our meeting with Hiromi. The notes should be set out in a manner which will make it easy for us to refer to them during our discussions and should address the following issues. बता भाई अमी, थोड़े से इश्यूज। अरे हाँ, मैंने पहले कुछ पढ़ा ही नहीं, सॉरी। ए, refund of income tax. Summarize the actions which our firm should take, including the matters which we should bring to Hiromi's attention in relation to the refund she has received. बेसिक शिट है, एम ही बताएगा। एक सेकंड ना, इनकम टैक्स रिफंड है, इनकम टैक्स रिफंड कहाँ पे इनकम टैक्स? दोनों जगह पे कितना है है। भाई? अरे ये मिसप्रिंट है, अरे ये डबल प्रिंट हुआ है। नीचे ओ, स्क्रॉल कर। ओ अच्छा। ओके ओके, समझ गया। डबल प्रिंट हुआ है, चार्जेबल गेन्स भी हो गया मिसप्रिंट से। तो ऊपर वाला ठीक और है। नीचे वाला कैंसिल कर दे। व्हाट? मैं बोल रहा था ये ऐसे ही रख देता था इतना। बस ये ये तो है, कैंसिल। अरे लेकिन चार्जर गेम्स तो दो बार क्यों माइनस कर रहा है? चल बड़ा आदमी है भाई, मैं चुपचाप। इनकम टैक्स रिफंड के बारे में बता ना भाई, इनकम टैक्स रिफंड उसको मिला है, गलती तो हो दे। गई HMRC से, ये देख, अनएक्सपेक्टेड रिफंड। तो क्या बताना है अपने को? वो एथिक्स एथिक्स का बताना है, ये तो क्लास में भी हुआ एग्जैक्टली, था एक बार। एग्जैक्टली बता। तो पहले तो रिफंड रिफंड किस चीज के लिए आया है वो अपने को एज अ टैक्स एडवाइजर चेक करना पड़ेगा। अगर वो जेन्युइन रहेगा तो फिर बराबर है। इफ नॉट जेन्युइन देन वी हैव टू डिस्क्लोज इट टू HMRC। आई मीन नॉट वी हैव टू टेल द क्लाइंट टू डिस्क्लोज इट टू HMRC। एंड अगर क्लाइंट बोल रहा है कि नहीं करेगा तो अपने को उसको छोड़ देना है, टाटा सी यू बाय बाय। एंड वी शुड नॉट इन्फॉर्म द HMRC व्हाई वी आर लीविंग। Regarding our resignation, and we should also यस। inform our company's money laundering reporting officer regarding if any further actions are required. मनी लॉन्ड्रिंग? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये रहता था। रिफंड कितने का आया है? इतना तो रिफंड भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी बताना तो है भाई, रिफंड एग्जैक्टली। है। रिफंड पता नहीं भाई, अनएक्सपेक्टेड है। बस एक लाइन दिया वो लोग ने। क्रेजी। अच्छा। 5 मार्क तो मिल गए। टाटा सी यू बाय बाय लिखने के 5 मार्क्स। हाँ भाई, टाटा सी यू बाय बाय। लास्ट में लव यू भी डाल दूंगा। मैं वो बहुत बोलना मस्तिया बहुत रहे, कुछ पता नहीं चाहता हूँ, क्यों। रिकॉर्डिंग ऑन है। पढ़ पढ़ाई तो घंटा नहीं हुआ है बट मस्ती बहुत आ रहा है। भाई जिस हिसाब से अपनी पढ़ाई हुई है ना, मस्ती थोड़ी सी रुक जानी चाहिए भाई। मस्ती थोड़ी सी रुक जानी चाहिए। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, FCSPD आया ओ तेरा। यस। अभी रिफंड पढ़ो जरा आप, क्या लिखा हुआ है। इतना? भाई we should assist Hiromi in identifying whether or not there was a valid reason for the refund. If we are unable to find a valid reason, we have to conclude that the refund was made as a result of an error on the part of HMRC. In these circumstances, we should inform Hiromi that the amount should be repaid, and that failing to do so would be a civil and or a criminal offense.
सीधा क्रिमिनल भाई. HMRC should be informed of their error as soon as possible in order to minimize any interest and penalties. which may oh interest and penalties का बोला ही नहीं भाई. लोग टाटा In सी बाय बाय the बोल रहे थे ना. unlikely event, in the unlikely event that Hiromi is unwilling to return the money, Hiromi's willingness to retain the money, which does not belong to her, would require us to consider ceasing to act as her tax advisor. We would then have to notify the tax authorities that we no longer act for her, although we would not provide them with any reason for our action. Our firm's money laundering reporting officer would also have to consider whether or not it is necessary to make a report under the money laundering rules. Oh, भाई, crazy. ठीक है, देख लिया आपने मनी Yes. लॉन्ड्रिंग के बारे में. आगे Yes. बढ़ते हैं. We can go ahead and attempt part B now, and anytime this page will load. पार्ट भी है ही नहीं. चलो छुट्टी घर पे. हो जा. हम्म. अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बी, chargeable gains. When carrying out this work in respect of Hiromi's chargeable gains, you should ignore any relief which may be available in her, sorry, to her in respect of her trading loss. Sorry, भाई, गलती से calculate capital gains tax payable by Hiromi in respect of the sale of the rental property on 20th of February 25. बस सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे और कुछ बकचोदी नहीं होगी यहाँ पे. Sources of यस. income. Hiromi recently became a client of our firm as source of income and chargeable. ये ठीक है. Hiromi has been in business as sole trader since 2006 to 2016. Uh, on 31st of December 25, Hiromi will incorporate her business by selling off its assets, a newly formed company called HKR Limited. The details of this transaction are set out below in the schedule of Hiromi Exhibit 2. एक मिनट ना, मेरे को क्या देखना है? मेरे को Exhibit 1, अच्छा Exhibit 1 and 2 दोनों देखना है. ओके. Chargeable gains. Hiromi's only disposals in recent years was her rental property. On 28th of February 2025, Hiromi sold this house for 2,65,000 she had inherited from her uncle on 1st of March 23, when the market value was 2,21,500. Hiromi's uncle had purchased the house for 1,35,000 on 1st of September 2026. Hiromi had never lived in the property. अरे भाई, तो 2013 को 23 पड़ा, फिर 2006 को 26 पड़ा. चल रहा क्या? कैसा है? छोड़ भाई, जो है ईयर तो पता चला ना, 13/6. भाई ठीक है भाई, जो है वो है भाई. अभी मैं इतना ईयर्स को नहीं देखता, मैं सीधा सम बराबर लाता हूँ. ठीक है. सॉरी भाई. अब हीरो में हैड नेवर लिव्ड इन द प्रॉपर्टी, तो पीपीआर तो पीआरआर तो नहीं मिलेगा, तो वो तो जाने दे, लेकिन उसके बारे में बात भी नहीं करना है. सेल प्रोसीड्स तो अपने को पता है कि 2,65,000 तो है. ठीक है. 20th Feb को है 2,65,000. She had inherited from her uncle on 1st March 2013 when it had a market value of 2,21,500. Hiromi's uncle had purchased this house for 1,35,000. हाँ. अभी इनहेरिट हुआ है. वैल्यू अगर बढ़ता है तो वी डोंट कंसिडर इट अपन. बट अपने को ट्रांसफर वैल्यू दिया नहीं है ना, तो मार्केट वैल्यू लेंगे या जो बट उसके अपने को अंकल का कैपिटल कॉस्ट था गेन्स वही के लेंगे. पर्सपेक्टिव से सोचना है. अपने को कैपिटल गेन्स के पर्सपेक्टिव से सोचना है. हाँ, दैट इज ओके बट. तो फिर तू मार्केट वैल्यू लेगा बोल रहा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को. हाँ, और क्या लेगा? ओके ठीक है ठीक है. क्योंकि अगर उसने कुछ रोल ओवर वगैरह किया है क्या? नहीं. गिफ्ट होल्ड ओवर वगैरह? बट एग्जिबिट 2 में से क्या देखने बोला है लोग ने. वो नीचे का रहेगा रे. ऑन द अजम्पशन दैट इनकॉर्पोरेशन रिलीफ विल बी अवेलेबल, वो सब है वो सीजीटी. उसके नीचे और बहुत सारी चीजें पूछी है वो लोग ने. अच्छा ओके ओके. अपने को क्या निकालना था? सीजीटी निकालने का था ना. ठीक है. तो हाँ, मैं मार्केट वैल्यू वही लूंगा रे, क्योंकि ठीक है चलेगा चलेगा.
सीजीटी के पर्पज से तो बराबर लग रहा है। अपने को सीजीडी चार्ज करने के लिए ना ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा एक्चुअली, समझा? क्योंकि तेरे को सीजीडी के लिए वो सब चाहिए ना रे, कि तेरा बेसिक बैंड में जगह कितनी है, वो सब तेरे को चाहिए। बोला है क्या किधर हायर अटैक पे रहता डायरेक्टली? ये नहीं ना, वही तो वो सब नहीं बोला है। हाँ। बट अपना वो थिंकिंग तो बराबर है ना कि 20 की 2,21,500, बिकॉज मतलब मेरे को ऐसा मतलब वो लग रहा था रे कि उसके अंकल को ये बाकी का मतलब पैसा गया रहेगा ना, लाइक उसके अंकल ने टैक्स भरा रहेगा अगर 2,21,500 वो ट्रांसफर कर रहा है हिरोमी को, जिसका वैल्यू है, हम्म, तो इसके अंकल ने टैक्स भरा रहेगा उसके गेन पे, बराबर। है ना? तो वो अपना थिंकिंग हम्म। बराबर है। अपने को सीजीटी लगाना है अभी। रिलीफ वाले के बारे में उन्होंने बोला कुछ सोचो ही मत। इस बारे में कुछ सोचो ही मत बोला है। और वैसे भी कोई रिलीफ आएगा नहीं, क्योंकि वो कभी रही भी नहीं है और बिजनेस के लिए भी कभी यूज नहीं किया है, तो वो जाने ही दे। वो बेच कब रही है? बराबर है। शी इज सेलिंग इन द, हाँ, शी 1 इज फरवरी। सेलिंग द ठीक है। प्रॉपर्टी 28 तक। इन द टैक्स ईयर 24-25, बराबर है? सो अभी अपने को क्या निकालना पड़ेगा? अपने को टैक्सेबल टैक्सेबल प्रॉफिट्स ऑफ 24-25 निकालना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि भाई बैंड में जगह कितनी बाकी है ना? रिफंड जाने दे। हीरो, अच्छा ये सब भी जाने दे ना, ये सब भी अभी पॉइंट नहीं है इस सब का अभी। Hiromi's tax adjusted trading profits for her final 3 periods of trading are set out below. 6 months ending, अच्छा ये देख, उसने लास्ट के 6 महीनों में भयंकर लॉस किया है। ओ, 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 ओके, ओके। तो ये कब से है? दिसंबर ना, दिसंबर, फरवरी, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई। आई कांट बिलीव मैंने जस्ट पूरा उल्टा काउंट किया पहली बार, फॉर नो रीजन। 3 मंथ्स। मेरे को नहीं जमता भाई उल्टा। पर ये 25-26 का है। ओ भाई, मैं कैसा मंद बुद्धि हूँ भाई, मेरे को कैसा मंद बुद्धि हूँ मैं। ये देख, सुन सुन, मैं बताया क्या बोल रहा हूँ। मेरे बोल। को नीचे भी कुछ तो दिया है। ये हीरो में सेल इलेक्टेड जो टू किया है वो टैक्स ट्वेंटी ऑल फोर द, ट्वेंटी फाइव का है। हाँ, ये देख, हीरो में बराबर। इलेक्टेड टू टैक्स ऑल ऑफ फॉर ट्रांजिशन प्रॉफिट्स इन द टैक्स ईयर 23-24, जो तेरे को यहाँ पे उन्होंने नीचे दिया हम्म। हुआ है। तो अगर ट्रांजिशन प्रॉफिट्स है, तो ट्रांजिशन प्रॉफिट्स ऑफ ट्वेंटी 20 ऑफ 23-24, ट्वेंटी तेरे को फोर एक, तेरे को 24-25 में आएगा, क्योंकि देख तू तेरी ट्रेडिंग बंद कर रहा है 25-26 में, बराबर है ना? तू तेरी ट्रेडिंग तो बंद तो बराबर है। तेरा, तो तेरे को एक बार 19,400 का 5 मतलब ये तेरे को एक बार सहन करना पड़ेगा, बराबर है? ट्रांजिशन प्रॉफिट्स, ऑफ 23-24। ठीक है? ओके। अभी क्योंकि उसको तो डिवाइड बाय 5 करता है। हिरोमी's only other source of income in recent years was the house she had rented out until she sold on Hiromi's assessable व्हाट property अबाउट income। 24-25? ये 24-25 का क्या है? मैं वही निकालने का ट्राई कर रहा हूँ, रुक जाना। Hiromi's assessable property income for the final 2 tax years
in which you own the property. रिलेटेड तो ये प्रॉपर्टी इनकम है यार, ये भैंचोद ये प्रॉपर्टी इनकम दे दिया ना वो लोग ने। हाँ वही वही प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी इनकम है, इनकम दिया है। ट्रांजिशन प्रॉफिट्स भी है। रुक जा। ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी प्रॉफिट इनकम है। पहले तेरा कितना है, तेरा तेरा करंट ईयर का प्रॉपर्टी इनकम कितना है, 24-25 का 15,500। ठीक है, तूने पहले वो लिख दिया। हाँ बराबर। अभी तेरे को चाहिए यस। तेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट्स फॉर दिस सेम ट्रेडिंग पीरियड। प्रॉफिट। अभी तू ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कैसे यस। निकालेगा, तू ट्रेडिंग प्रॉफिट्स निकालेगा 24-25 से अभी। हाँ। सो 0604 20 0604 2024 से 30th ऑफ 30 जून ट्वेंटी जून ट्वेंटी फोर 24। तो उसके प्रॉफिट्स कितने हैं, फोर्टी बराबर। फोर थाउजेंड 3 महीने के लिए फोर्टी डिवाइड फोर थाउजेंड इंटू थ्री थ्री बाय ट्वेल्व डिवाइड बाई 12। थैंक यू। परफेक्ट। अभी है, थैंक यू अभी भाई, नौ थैंक यू। महीने के लेगा तू। बहुत बहुत मेहनत हुई। मजाक मजाक करो। अभी 9 महीने हाँ। के तू लॉस लेगा ना, बट ये तो परफेक्ट लॉस है परफेक्ट उसको बोल रहा है, चार परफेक्ट हजार बोल रहा के। है। बोलना कितना। 4,000 का लॉस है तो 9/12 कितना होता है? 4,000 इंटू 9/12। 4000 इंटू 9/12 8,000। लॉस है, लॉस है, ये लॉस है। ठीक है। तो अभी ये तेरे यस। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कितने आए, जितने भी आए, बट दिस इज योर 8,000 परफेक्ट। ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। ठीक है। यस। प्रॉपर्टी इनकम है तेरा 15,500 का। अपन ये दैट्स सब योर। पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं जस्ट टू सी कि इसको सीजीटी कौन से परसेंटेज पे लगाना है। हाँ छी भाई। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बट भाई मार्क्स भी तो अच्छे हैं ना उसके, कितने मार्क्स है, 12 मार्क्स है भाई उसके। ओ वो नहीं, भी ये नीचे क्वेश्चन की के चीजों भाई। के। हाँ वो तो पूरे नीचे भी क्वेश्चन चीज के है। पास अरे भाई वो तो 12 मार्क्स नीचे भी पे। और बड़ा क्वेश्चन है भाई। अरे माँ कसम, ठीक है। कोई ना। अभी तेरे ट्रांजिशन प्रॉफिट्स तो रह गए, उसका तू क्या करेगा ट्रांजिशन प्रॉफिट्स का। वो नीचे के ट्रांजेक्शन ही रहेंगे प्रॉफिट्स है फिर। कहाँ पे? मैं वही देखने को कोई। वो नीचे का ही रहेगा ना फिर, अभी और क्या बाकी रह गया। या तो फिर ये जो 44,000 का हमने 3/12 किया है, उसका 9/12 होंगे हाँ। प्रॉफिट्स। क्यों? नहीं, बट वो भी 23-24 का मिलेगा ना। वो 20, हाँ पिछले साल का है वो तो। तो फिर यही मैं मेरे को लगता है फिर यही है, आई मीन 19,400 ट्रांजिशन प्रॉफिट्स फिर तो ना। नो भाई। इलेक्टेड टू टैक्स ऑल ऑफ आवर ट्रांजिशन प्रॉफिट्स इन द ट्रांजिशन प्रॉफिट मेन मतलब अपने को फिगर दिया हुआ मेरे को तो दिखा है अब तक। यहाँ पे फिगर ही नहीं दी है। बट उन्होंने क्या बोला है, देख ट्रांजिशन प्रॉफिट्स बेसिकली क्या होते हैं कि मैं मेरे मेरे प्रॉफिट्स को अगले 5 साल तक लेके जाऊंगा। वो लोग बोल रहे हैं मैं सारे के सारे मतलब प्रॉफिट्स को वो 23-24 में ही करूंगा टैक्स। तो वो ट्रांजिशन प्रॉफिट्स ही कैसे हुए। हीरो में इलेक्टेड टू टैक्स ऑल हर ट्रांजिशन प्रॉफिट्स इन द टैक्स ईयर 23-24। इट्स जस्ट दैट इट डजेंट मेक सेंस, बिकॉज मतलब ये लाइन का कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि फिर ट्रांजिशन प्रॉफिट्स का मीनिंग ही वही है कि तू उस चीज को पूरा का पूरा आई क्या गेस बोलते हैं। आई गेस हम्म। आई गेस वो ऐसे बोल रहे हैं कि उसका बिजनेस वैसे भी ये हो रहा है 2025-26 में बंद हो रहा है बराबर। हाँ। तो वो लोग ये बोलना चाहते हैं कि हीरोमी इसको ही करेगा 23-24 में पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन प्रॉफिट्स कंसिडर कर रहा है। वो अपने ऊपर हम्म। रहता है टू इलेक्ट तेरे को 5 साल तक ये करना है या एक ही साल में पूरा कर लेना है। ठीक है अपने ऊपर ठीक है रहता है टू इलेक्ट। ठीक है। तो अभी बेसिक बैंड में जगह कितनी बाकी है, फिर बेसिक बैंड में जगह बाकी है टोटल इनकम माइनस PA 12,570, टैक्सेबल इनकम मतलब आता है 10,930 का। तो बेसिक बैंड में जो जगह बाकी है वो बाकी है 37,700 माइनस 10,930 2,677 की, 770 की बेसिकली। आई और गेस फिर ये उसके ये कम्प्लीटली बराबर ही होगा क्योंकि 23-24 में अगर वो ट्रांजेक्शन प्रॉफिट पूरे ले रहे हैं तो अपने को वो लोग ने इसीलिए दिया होगा ये कि 24-25 में तुम लोग कुछ ट्रांजेक्शन प्रॉफिट का कंसिडर करो ही मत। हम्म, गॉट इट। तो अभी इन दोनों को तू ऐड करेगा, ये आता है तेरा CGT। ठीक है।
तो ये अपने को अपना सिर्फ सीजीटी मिला बी के फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, आता है बी का सेकेंड पार्ट। ठीक है। मैंने किया है। ये। हाँ ठीक है, अभी कर देख लिया ना तूने। हाँ हाँ। In respect of the proposed sale of sale of Hiromi's business assets to HKR Limited on 31st of December 25, explain whether or not each of the three conditions for incorporation relief will be satisfied। तो पहले तो अपन थ्री कंडीशंस ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिलीफ बताएंगे। एमी, मैं मुझे पता है कि तेरे को नहीं आता, प्लीज बता फिर, ट्राई कर। क्या क्या क्या? अपना वीडियो ऑन कर फिर ट्राई कर। एक सेकंड, क्या बोल इनकॉर्पोरेशन रहा है? रिलीफ के इनकॉर्पोरेशन रिलीफ के तीन रिलीफ्स के कंडीशंस है ना, तो वो तीनों कंडीशंस बताने का ट्राई कर। हाँ, एक सेकंड। हम्म। हाँ, बिजनेस सीज होना चाहिए, सबसे बेसिक। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं है। हाँ। मुझे जस्ट एक चीज क्लिक हुई, मैंने यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लाई देख कौन से रेट से किया है, 10 और 20 से क्या? किया है, जबकि वो है साला वो रेंटल प्रॉपर्टी है ना, 18 और हाँ। 24 से होना चाहिए था। आगे बोल, हाँ सॉरी, काट दिया मैंने, बता। लोग मेरे को याद ही नहीं आ रहा है। सीजिंग का एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, कंप्लीट ऐसे याद ऑपोजिट क्या है भाई, सीजिंग का कंप्लीट ऑपोजिट। स्टार्टिंग इनकॉर्पोरेशन रिलीफ अपने को गोइंग जब ये कंसर्न, करते हैं गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न की तरह देना है। हाँ, जब तू ओ हाँ, जब तू मतलब तू तेरा ये बिजनेस सीज करके किसी और को ट्रांसफर कर रहा है तो एज अ गोइंग कंसर्न रहना चाहिए, राइट? देन कंसिडरेशन, क्या कंसिडरेशन? consideration some part of the consideration should be in the form of shares, शेयर्स। हाँ। and all of the शिट। business assets are transferred। ओके 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 ओके। तो अभी अपने को यहाँ पे बताना है हाँ, कि क्या सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं कि नहीं फुलफिल। तो ये देख, आई विल सेल ऑल ऑफ द एसेट्स ऑफ माई बिजनेस टू HKR, बराबर है, तो ये एक कंडीशन तो फुलफिल हो रहा है। ये एक हो गया। ठीक है। आई विल रिसीव 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन HKR लिमिटेड, ये भी हो रहा है। Valuation टू लैख ये फिफ्टी भी फाइव हो गया थाउजेंड फिर। 81%, रिमाइंडर ऑफ द कंसिडरेशन विल बी लेफ्ट ऑन लोन अकाउंट, वो जाने दे। आई विल नॉट मेक एनी फॉर द कैपिटल डिस्पोजल्स। एंड हाँ ठीक है, मतलब लुकिंग टू द फ्यूचर, आई एक्सपेक्ट द आई, टर्नओवर ऑफ द बिजनेस टू इंक्रीज कंसिडरेबली। हाँ, तो ये इंक्रीज हो रहा है और तो बेटर ही है फिर। गोइंग कंसर्न भी हो गया ना। हाँ बिजनेस बराबर है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये गोइंग, मैं बस ये बोलने वाला था कि हम इसको ऐसे ही सब के सब दे रहे हैं तो आई थिंक ये चालू रहेगा बिजनेस, बट हाँ इन्होंने नीचे बोला हुआ है तो राइट। तो ये सारे कंडीशंस हम्म। फुलफिल हो रहे हैं। अब नीचे और, on the assumption that incorporation relief will be available and that all of the available reliefs will be claimed where necessary, calculate CGT which will be payable by Hiromi in respect of the sale of her business assets। ठीक है, सेल ऑफ बिजनेस तो सबसे पहली बात तो करंट एसेट्स पे तो कुछ नहीं आएगा। गुडविल मैंने ऑन प्राइस ही बेचा हुआ है। आई मीन ये देख क्या पूछा गया है, ऑन द assumption that incorporation relief अवेलेबल है and that all available reliefs will be claimed। ठीक है, और अज्यूम करें कि सारे के सारे रिलीव्स हम क्लेम कर रहे हैं वेरेवर, अब वेरेवर सीजीटी विच ना। एवर इज नेसेसरी, हाँ फॉर सीजीटी बेसिकली। अभी आपने को सीजीटी हाँ। पेएबल निकालना है। ठीक है, तो तेरा एसेट कौन सा ओके बचता है? ओके। तेरा एसेट बचता सिर्फ बिल्डिंग ही है फिर खाली, गुडविल, गुडविल को क्यों कैंसिल किया अपन ने? क्योंकि कॉस्ट एंड मार्केट वैल्यू सेम है उन दोनों की। ओके। हम्म। अब सेल प्रोसीड्स बेसिकली सेम है। तो बिल्डिंग, उसके लिए ओके। चार्जेबल गेन्स आ रहे हैं 1,72,000। फिर इनकॉर्पोरेशन रिलीफ मिलेगा। ठीक है, कितने का मिलेगा एमी? इनकॉर्पोरेशन रिलीफ
उसका 50% मिलता है ना? किसका 50% मिलता है? 50% ही है ना कुछ तो? ऑन द परसेंटेज ऑफ कंसिडरेशन, कि तूने कितने परसेंटेज ऑफ योर शेयर, ऐसा कितना परसेंटेज ऑफ हाँ, कंसिडरेशन शेयर्स तेरा दिया है, शेयर्स में है। ओके, तो 81%, 81% ऑफ हाँ। द कंसिडरेशन इज इन शेयर। हम्म। ओ, ओके ओके। मल्टीप्लाई किससे करूँ, गेन से कि कॉस्ट से? इनकॉर्पोरेशन विल बी ऑन गेन्स। मुझे ये वाला याद तो नहीं है कि जितने का ये गेन किस पे है, था। हाँ, तेरे को जितने का गेन है उसका तू 81% ये करेगा ना? ठीक है, तो ये तेरे हो गए चार्जेबल गेन्स। ठीक है, आफ्टर चार्जेबल रिलीफ, गेन्स। हाँ। अभी ये तूने वेयर हाउस कब बेचा था? तूने वेयर हाउस बेचा था, हाँ, सॉरी वेयर हाउस नहीं, तूने ये रेंटल प्रॉपर्टी बेची थी 25 में, मतलब इन द टैक्स ईयर 24-25। वेरस तू ये बिल्डिंग बेच रहा है ऑन September 25, मतलब तेरे को नया एईए मिलेगा पूरा का पूरा। एईए। September 25 में बेच रहे हैं। हाँ मतलब अगले साल में तू बेच रहा है ना, नेक्स्ट टैक्स ईयर में तू बेच रहा है। 31 दिसंबर को बेच रहे हैं अपन 25। फर्स्ट, अच्छा। हाँ नहीं, ठीक है, आई विल सॉरी सेल सॉरी ऑल ऑफ द सॉरी, माय एसेट्स इन बैड द माय बिजनेस। बैड माय बैड, मैंने वो September 25 देखा, बट हाँ, फर्स्ट थर्टी हाँ, फर्स्ट दिसंबर 25 को बेच रहे, बट अगेन एईए तो मिलेगा, क्योंकि 25-26 टैक्स ईयर में आ रहा है। 24-25 का था, हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो अभी ये आ गए तेरे टैक्सेबल गेन्स। अब बता कौन सा रिलीफ मिलेगा, बैडर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बैटर मिलना चाहिए टेक्निकली। बराबर, तो बीएडीआर आएगा। हम्म। कुछ यहाँ पे और कुछ दिया है नहीं है ना? ईयर्स का कितना, कुछ भी नहीं बोलना है। तो आता है 2968। तो दिस इज माई, ठीक है, हो गया फिर 12 मार्क का क्वेश्चन। चल चेक करते हैं। पहले का आंसर देख। 8114, 8113.8, ठीक है, परफेक्ट है ये वाला। हमने ये भी बिल्कुल सही किया, इनकॉर्पोरेशन रिलीफ के ये तीनों कंडीशंस हमने बिल्कुल सही देखा। गोइंग कंसर्न, ऑल ऑफ द एसेट्स अदर देन कैश, ओके, अदर देन कैश शुड बी सोल्ड, एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड इज द फॉर्म ऑफ सेल्स, ठीक है। ये सब कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं, ये देख सीजीटी 2968 बीएडीआर पे, ठीक है। परफेक्ट। लवली टू डे। लेवली, चलो भाई, ये भी हो गया। अभी एक सेकंड रुक जा, मेरा तो जाता था ये। पार्ट 1 पार्ट 2 में डालना पड़ेगा देख। देखते हैं। Trading loss. For the purpose of this part C, you should ignore the terminal loss relief and national insurance contributions. Very good. अपन एनआईसी तो अपन इग्नोर ही करते हैं भाई, अपने को क्लिक नहीं होता भाई तो क्वेश्चन एनआईसी नहीं तो, बना रहेगा तो भी इग्नोर हो जाता है भाई। सब इग्नोर हो ही जाता है भाई वो। चल, कैलकुलेट Hiromi's budgeted trading loss for the tax year 25-26 and state how the loss can be relieved. ओके, हमको बताना है कैसे हम उस लॉस को रिलीव कर सकते हैं। Hirami ट्वेंटी budgeted फाइव ट्वेंटी trading। सिक्स के तो ये 43,500। और टर्मिनल लॉस रिलीफ नहीं लेने बोला है वो लोग ने ना? हाँ, तो फिर कैसे भाई, 3 साल पीछे तो नहीं लेके जा सकता? टाकली नांदी टाकलीस। हम्म, बजटेड ट्रेडिंग क्या टाकली? लॉस, अभी देख, कुछ नहीं कुछ नहीं। अभी ये देख ना, अपन ने इतना सब कुछ, अरे वो मैंने डिलीट कर दिया, ओ भाई। क्या डिलीट कर दिया? अच्छा, कुछ मैंने वहां पे शायद लिखा था, मैंने मस्त मस्त सा वो ट्रेडिंग लॉस वगैरह वहां पे लिखा था, वो जुलाई टू दिसंबर वगैरह, वो सब करना पूरा डिलीट कर दिया। कंट्रोल जेड। अरे अरे भाई, 01/07/2025 से 31st of December 2025, 43,500 का लॉस है, ठीक है। एंड टैक्स ईयर 25-20 बजटेड ट्रेडिंग लॉस फॉर द
टैक्स ईयर 25-26 पूछा है ना वो लोग ने। हाँ। हाँ। हाँ मेरे को देखने दे। हाँ बराबर। तो अभी मैं लास्ट का ये जून का भी लूंगा। 06/04/2024 से 30th of June 2025। ठीक है। तो वो है 4,000 का, जिसमें से मेरे को 3/12 भी लेना है, तो वन एक थाउजेंड तो महीला मिलेगा, बेसिकली हाँ। मेरा जो टोटल टैक्स। बजटेड ट्रेडिंग लॉस आता है। मेरे ट्रेडिंग लॉस क्या लिखा है मैंने, फॉर दी टैक्स। खराब स्पेलिंग है ना। हाउ दिस लॉस कैन बी रिलीव। अभी अभी हाउ हाउ में अभी दिस तू, लॉस मेरे को कैन बी लगता है रिलीव्ड। हम्म। अभी अपने पास ट्रेडिंग इनकम तो कुछ भी नहीं है फॉर करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का भी, तो मेरे को लगता है कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट ही सेटअप होगा। उसका कुछ ओ सैलरी विलरी है ना। हम्म। अप्रैल 26 में, ये तो फिर 26-27 में जा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शंस मेरे को दिख रहे हैं अगर मैं टर्मिनल लॉस लीव नहीं ले सकता तो। करंट ईयर लॉस लीव क्लेम, कि मैं करंट ईयर में लॉस लीव कर लूं, जो मेरा सैलरी वगैरह है वो। कैरी बैक अगेंस्ट दी टोटल इनकम। टोटल इनकम। ठीक है। एंड फिर है कैरी फॉरवर्ड दिस कैरी लॉस। फॉरवर्ड। बट हाउ विल यू कैरी फॉरवर्ड द न्यू बिजनेस में। हाँ। हाँ। ओके। ओके। या फिर अपन एक्चुअली ये ट्रेडिंग लॉस है ना, ट्रेडिंग लॉस है ना, ये 25-26 का ट्रेडिंग लॉस है। तो मैं एक्चुअली इस ट्रेडिंग लॉस को, फोर्थ भी एक है ना, सेट ऑफ अगेंस्ट चार्जेबल गेन्स। हाँ तो करंट ईयर का चार्जेबल गेन अभी तू उसमें लिखा है, करंट ईयर लॉस रिलीफ क्लेम, मतलब उसमें तू चार्जेबल गेन्स कंसिडर कर रहा है ना कि नहीं। करंट ईयर टोटल, हाँ करंट ईयर लॉस रिलीफ क्लेम अगेंस्ट टोटल इनकम, हाँ। यस। बराबर 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 बराबर। और तू कैरी फॉरवर्ड करता है तब तू आई गेस ये नहीं कर सकता ना, चार्जेबल गेन्स के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकता ना, सिर्फ ट्रेडिंग इनकम के अगेंस्ट ही हो सकता है। ये उल्टा बोल रहा हूँ मैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कैरी फॉरवर्ड के टाइम पे शायद, हाँ मे बी सिर्फ बहुत सारी ट्रेडिंग इनकम चीजें के हैं अगेंस्ट भाई तो क्लेम उसमें। कर सकता है। हाँ। हाँ बहुत है यार वो, नहीं याद रहता है। ठीक है, तो अभी ये तो अपन हाँ ने हाँ। बता दिया कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, तो ये तो हो गया 6 मार्क का। और इसके बारे में जो अपन ने ये वाला थ्योरी लिखा है, इसको थोड़ा और बड़ा लिखेंगे। अभी के लिए ऐसे ही लिख दिया है, छोटा मोटा बड़ा ही वो लिखना लिखने। पड़ेगा मतलब। अभी यूजिंग द लॉस मैं कैलकुलेटेड ये पार्ट पूछ रहा वन। हूँ, बोला। उसका कुछ ये है क्या, इनकम अपने को दिया है क्या, सैलरी विलरी का नहीं ना, दिया है ना करंट ईयर और ऊपर, प्रीवियस ईयर का। ये देख ना, लुकिंग इनटू द वो तो फ्यूचर। नए इसका दिया है। हाँ, फ्यूचर का दिया मतलब नए जो इनकॉर्पोरेट होगा बिजनेस उसका दिया है 26-27 के लिए, तो वो तो हाँ कैरी नहीं, फॉरवर्ड में ही करंट चला ईयर जाएगा। जो ये खुद का बिजनेस है ना, ये खुद का बिजनेस है, इसका हाँ। इनकम खाली खाली प्रॉफिट्स ही है। ये उसमें से सैलरी वगैरह प्रॉफिट्स ही कुछ है। नहीं ले रहा। ठीक है ठीक है। अभी using the loss calculated in part 1, explain with supporting calculations the tax saving which would result in following two alternatives: relieving the loss as soon as possible, assuming that no relief is claimed in respect of the tax year 25-26। अच्छा। करंट ईयर में कुछ नहीं लेना है। नाइस, वेरी गुड। रिलीविंग द लॉस इन द फ्यूचर। ठीक है, गुड। तो खाली कैरी बैक Okay. और कैरी फॉरवर्ड ही है। नाइस। हाँ, विदाउट क्लेमिंग इन करंट ईयर। तो अपने को पिछले साल अगर तू लेके गया तो अपना टैक्स सेविंग हो रहा है वो सीजीटी का ही हो रहा है, क्योंकि पिछले साल भी अपने पास ट्रेडिंग एज सच इनकम कुछ भी नहीं था ना। नहीं था ना, था ना, रुक जा बताता हूँ। कैरी बैक दी, ओ कैरी बैक राइट राइट, समझा। against previous year total income without current year claim. Particulars amount, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स कितने थे तेरे पास, ट्रेडिंग प्रॉफिट्स थे ना तेरे पास, ये देख। नहीं, टोटल इनकम लिख देता हूँ ना मैं, सॉरी, टोटल इनकम 23,500, या ऐसे लिखूं।
पूरा एक एक करके लिखता हूँ ना, अच्छा दिखेगा और बड़ा भी दिखेगा आंसर। चार्जेबल गेन्स वो भी थे ना तेरे पास, चार्जेबल गेन्स वो कितने थे? 20। नीचे नीचे, ये कौन सा तेरे है? नीचे क्या हो गया? क्या? वेयर हाउस गलत के, गलत वेयर हाउस कुछ के लिख बिना। दिया क्या? डिस्पोजल, ये वो नहीं नहीं, रेंटल प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी के, हाँ हाँ वही लिखे ना। हाँ। हम्म। If we are carrying back, then we cannot adjust the personal allowance, and hence that would be wasted. ठीक है? तो देर इज ऑल्सो लिमिट आई गेस, कि तू सेम ट्रेड के लॉसेस कंप्लीटली नहीं ले सकता। 50,000। अगर तेरे, हाँ 50,000 का लिमिट है ना। बराबर बोला तूने, मुझे वो चीज याद नहीं था, बट हाँ 50,000 है अमाउंट। तो वो प्रॉपर्टी और टैक्सेबल गेन्स, वो टैक्सेबल गेन्स भी आएगा उसमें, आएगा ना। हम्म। ये कैपिटल गेन्स का अलग ही है रूल, क्या पता। तो तू बोलना चाहता है कि मैं 26,500 के ही कैपिटल गेन्स इसमें से सेट ऑफ कर सकता हूँ, बिकॉज वो 50,000 का रूल आता है, ऐसा? हाँ आई गेस। ओके। लोअर ऑफ ईयर ऑफ कुछ नहीं था ना इसमें। नहीं नहीं, तो अभी अगर मैं इतने के शेयर थ्री शायद वो थाउजेंड सेट ऑफ और कर ऐसा सकता लोअर हूँ। ऑफ। नहीं नहीं नहीं, 730, 50,000 माइनस दिस, यहाँ पे 24% और यहाँ पे 18%। यहाँ पे बेसिकली जो टैक्स सेव हो रहा है कैरी बैक करके, वो हो रहा है 7,780 का। ठीक है? अभी कैरी कैरी फॉरवर्ड द लॉस अगेंस्ट द टोटल इनकम अगेंस्ट द, ठीक है, विदाउट द करंट ईयर क्लेम नेक्स्ट लॉस अगेंस्ट ईयर। प्रीवियस ईयर हो गया। हाँ, फॉर द लॉस अगेंस्ट द नेक्स्ट ईयर सैलरी। वो प्रॉफिट बनाएगा वो ना, सैलरी आएगा, यस। 5,500 पर मंथ, बिगनिंग ऑन 6 अप्रैल 2026। 55,000 इंटू 12। 12 पूरा। will also be paid a dividend of 7,000 each year. Dividend income भी है साथ। The first dividend will be paid on 1st November 2027। ओए, ओए नहीं 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 नहीं, ये नहीं आएगा, नहीं डिविडेंड आएगा। नहीं आएगा क्योंकि वो 27-28 में जाएगा। 27, यस। HKR विल पे कॉर्पोरेशन टैक्स एट द मे, वो जाने दे कॉर्पोरेशन टैक्स। अभी तेरा पीए तो वेस्ट नहीं हो रहा है। बराबर। तो तेरा बचा हुआ है 5,3, ठीक है? अभी तेरा बेसिक में जाता था 37,700, और जो ऊपर का था वो जाता था 40% में।
यस। बराबर है। तो अभी बराबर। तेरा हायर रेट बैंड में कितना जा रहा है? तेरा हायर रेट बैंड में जा रहा है दिस इंटू 40%, विच इज इतना। ओके। अभी जो भी तेरा लॉस था कितना था? 44,000 ना, 500। हाँ, दिस माइनस दिस। अब ये तेरा सेव हो रहा है 20% के बैंड में। ऐसा सीन एक है। सेकंड, समझा नहीं मेरे को समझा नहीं है। तेरा टोटल लॉस कितना है? 44,500, बराबर है। बराबर। अगर तू बेसिकली, अगर अब तू तेरा ये 15,730 पे टैक्स सेव हुआ 40%, अगर तू लॉस रिलीफ क्लेम करेगा तो। लॉस रिलीफ क्लेम करेगा तो, बट उस 44,000 में से -37,700 तो पूरा गया। नहीं मेरे भाई, ये लॉस। हो गया ना तेरा। तेरा सबसे पहले मतलब वो टॉप स्लाइस में से जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। 40% है। बराबर। अब जो 44,500 पूरा। में से ये जो तेरा मतलब वो टॉप स्लाइस में ओके, तेरा बचा हाँ था, उसको समझा। 20% में जाएगा। ऐसा। 50% में जाएगा, समझा। ठीक है। तो इतना टैक्स होगा, क्या ठीक है, अपन ठीक ने है, यहाँ ओके। पे सेम चीज की थी? यहाँ पे भी अपन ने सेम ही चीज की थी एक तरीके से, लेकिन खाली वो टॉप स्लाइस में उतना जा नहीं रहा था। जा नहीं रहा था। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अभी तक यहाँ पे ना बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, तू देखेगा तो 7,780 और 12,076। मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, अगर अपन पहला क्लेम 24 और 18 के लिए करें तो खराब होगा ना लेकिन। पहला क्लेम। पहला क्लेम क्या? 24 और 18 के लिए? नहीं, पहले अपने को सीजीटी कंसिडर करने से पहले अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट्स वगैरह कंसिडर करना पड़ता है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो फिर काफी इजी है ना डिसीजन मेकिंग, तू खाली कैरी फॉरवर्ड करेगा। बट अपन ये भी बोल सकते हैं ना कि उसको कैरी बैक करने से एक रिफंड इनिशिएट होगा, rather देन तेरे फ्यूचर इनकम पे। हाँ, मतलब वो तेरे तो को तेरा वेट आगे का। करना पड़ रहा है, ये तेरे को तेरा। वेट करना पड़ हाँ, रहा वेट करना पड़ रहा है। अब भी तेरा कैश फ्लो इम्प्रूव हो सकता है, तो वो अभी प्लान पे है। है। नाइस नाइस, ये अपन बोल सकते हैं, बराबर। ट्राई, चेक करें। हम्म। 44,500 परफेक्ट है। लॉस लीव तू कैसे कर सकता है? प्रीसीडिंग ईयर में चार्जेबल गेन्स के सामने बोथ दी ईयर्स, क्लेम इन द करंट ईयर, बराबर है। करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग ईयर। फिर फर्स्ट अवेलेबल इनकम रिसीव फ्रॉम एच के लिमिटेड, मतलब ये उन्होंने खाली फ्यूचर का बोला हुआ है, कैरी फॉरवर्ड के बारे में। फ्यूचर का बोला है। कैरी फॉरवर्ड, यस। फिर ये आता है offsetting the trading loss against Hero Means tax year 24-25 would use 20,500 of the loss would result in an income tax saving of 2186। ये देख 2186। एक सेकंड ना, एक सेकंड। नहीं, वो नेगेटिव में लिखा है इसलिए वो हो रहा है क्या? जा तेरे साइड पे। ओह नहीं नहीं नहीं, हाँ ये देख ये देख ये देख, अपन अगर इसको करेंगे ना तो ये देख 2186 आता है हाँ, समेशन में। वही वही हाँ ना, वही वही जो ठीक है मैंने तो, लिखा था, यस। ठीक है ना, 2186 ही आता है, ये अच्छा होगा, ये अपन ने सही किया। फिर आता है टैक्सेबल गेन, रिमाइंडर लॉस जो है 21,000 का, ये देखा अपने 21,000 नहीं है भाई, 26,000 क्लेम किया। व्हाट व्हाई? वेट, ये अपने क्या किया? 21,000 रिमाइंडर लॉस, फिर यहाँ पे क्लेम किया तो रिडक्शन इन सीजीटी, ओ उन्होंने फिर वो रिडक्शन इन सीजीटी निकाला। समझा गया तू उन्होंने क्या किया? पूरा अरे क्लेम नहीं हो रहा था। नहीं, एक मिनट, एमी, व्हाट द हेल भाई, तूने क्यों बोला 50,000 के बारे में यार? फक भाई, मेरे घर से 50,000 ले, अरे यार, जब टोटल ये 50 देखना हजार मैंने लिया लॉस, मतलब? ये देख मेरा सबमिशन देख खाली तू लॉस का, अरे भाई। मैंने लॉस देख अरे कितना क्लेम कर भाई। लिया। मैंने 50,000 का लॉस क्लेम कर लिया जब साला था ही 44,500। कैमी यार, ये मैंने जस्ट बस बोला था ब्लेम एम। 50 हजार तक का क्लेम कर सकता है।
हाँ, अगेंस्ट एनी अदर इनकम, बट वो नहीं क्यों बोला वेंचो, जब जब नहीं जानना है मेरे को, जब वो जब इंफॉर्मेशन रेलेवेंट ही नहीं है, तो क्यों बेंचो? ये देखना आंसर बराबर आता है यार, जब तू टोटल रखे हमने। अरे यार, पूरा सम मैं बराबर सोच रहा होता। था कि तू 50,000 तक पीछे लेके जा सकता है। जब लॉस नहीं, एक मिनट बेंचो, जब लॉस 44 500, तो तू इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा है? जिस सॉरी, ब्लेम एमी एंड माय मूव बैड। ऑन भाई। अरे नहीं नहीं भाई, तुझे मतलब बुरा मत मान, तेरे को बुरा लग गया क्या? शट अप। ठीक है भाई, चल फिर ये हो जाता है 6790 का। फिर नीचे जब हम आते हैं, तो ये देख नेट आता है 12046 का, तो ये अपना बराबर आया 12046, तो देयरफॉर कैरी फॉरवर्ड करना ज्यादा अच्छा है। बट ये मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, मतलब मैं खाली मजाक कर रहा हूँ, बट आई मीन तेरे ये पूरे सब में पॉइंट्स बहुत बढ़िया थे, मैं मजाक कर रहा था जो कह रहा था। बट जेन्युइनली 50,000 पीछे लेके जा सकते, उतना ही लेके जा सकते अगेंस्ट अदर इनकम, वो चीज मुझे याद नहीं थी। एंड ये जो तुमने बोला ना कि कैश जो है वो मैं क्लेम कर सकता हूँ, वो भी मेरे को याद नहीं था कि उससे अपना कैश फ्लो पोजीशन इंप्रूव होता है वगैरह, तो मैं थियरी में तो जीरो ही था भाई मेरा। मेरे को एनीवेज। सॉल्व भी करने नहीं आ रहा था, फॉर्मेट ही नहीं आ रहा था मेरे को। एनीवेज ठीक है, वो भाई, तो मतलब। सेट आउट द मैटर्स वी शुड ड्रॉ टू हिरोमीज अटेंशन इन ऑर्डर टू, हाँ वो हो गया फिर लॉस, ये देखो 3 मैटर्स थे, कहाँ गया? कैरी द लॉस फॉरवर्ड, तो ये सब तो जाने दे। However, the loss forward would result in benefit of the loss relief being delayed. In addition, HKR may not be In addition, HKR may not be as profitable as expected. This have an impact on the salary to be paid to Hirumi such that she would not be a higher rate taxpayer in the tax year 26-27. Fortunately, the election to offset the loss against the total income of the tax year 24-25 does not need to be made until 31st of January 2028, by which time we will know whether or not Hiromi is a higher rate taxpayer for the tax year 26-27. ठीक है? इलेक्शन छोड़ इलेक्शन का राशन। कुछ पता नहीं भाई। किसका किसका? इलेक्शन इलेक्शन का डेट्स वगैरह कुछ पता नहीं है। वो छोड़ भाई, क्लेम में अभी सब क्या क्लेम आंसर करना। बराबर आना आना चाहिए भाई, क्लेम तो क्या है भैंसो। when when तो मस्त HKR स्टार्टिंग है। Limited owns the business, ये एक नई लास्ट 7 माह की चीज है, एक्सप्लेन विद सपोर्टिंग कैलकुलेशंस द टैक्स implications for HKR Limited and Hiromi of HKR Limited paying the dividend of 7,000 the tax year 27-28. State the matters you would draw to Hiromi's attention in relation to requirement of HKR Limited to maintain and retain records related to the business activities. पता भाई, अगर वो डिविडेंड देगा ठीक है साथ। भाई। नहीं, वो क्या बोलते हैं, वो रिकॉर्ड्स वाली चीज मेरे को अच्छे से पता है, थियोरी है वो, एथिक्स वाला। तू चार सात साल हजार होल्ड कैसे? करना चाहिए ना, ऐसे करके। नहीं, 6 साल तक होल्ड करना चाहिए, जो भी रिकॉर्ड्स हम मेंटेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एविडेंस, इन द फॉर्म ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, रिसीट्स, पेमेंट्स, वो सब। अगर नहीं कर पाते हम लोग होल्ड, और HMRC को लगता है कि ये सफिशिएंट रिकॉर्ड्स नहीं है, तो हमें 3,000 तक की पेनल्टी लग सकती है गुड। अभी। और अभी 7,000 का अपने को टैक्स इम्प्लीकेशंस बताना है, तो वो अपने को इसका पहले तो हीरोमी का इनकम टैक्स पूरा कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, एनएसआई और डिविडेंड का। उसको सैलरी भी आ रहा है एंड डिविडेंड भी आ रहा है, तो उस हिसाब से जाएगा 2040 जो भी रहेगा। और थर्टी एचकेआर को, थ्री पॉइंट सेवेंटी एचकेआर फाइव के परसेंट पहले 500 पे जीरो, 83.70। आगे के सिक्स हाँ थाउजेंड फाइव एंड हंड्रेड पे 33.75। हाँ, मैं 2040 बोला ना, सॉरी सॉरी। और एचकेआर को क्या होगा? लन फर्क नहीं पड़ेगा जब एच के कंपनी क्योंकि डिविडेंड देती है तो कंपनी कुछ नहीं करता है, हाँ भाई। एग्जैक्टली प्रॉफिट्स के बाद देता है, बस उनको 20। ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि उनके प्रॉफिट्स सफिशिएंट इनफ है डिविडेंड पे ऑफ करने के लिए, दैट्स इट। यस, सिर्फ डिविडेंड का ही पूछा है ना, तो एनएसआई वीएनएसआई का भी कुछ इम्प्लीकेशन नहीं बोलेंगे, क्या नहीं। परफेक्ट है, ये सब बिल्कुल सही है। ये लेकिन मैंने खाली ये कैलकुलेशन करके बताया कि अरे इतना कॉर्पोरेशन टैक्स होना चाहिए, ये वो।
ऐसा सब रुक जा, कि हाँ, द डिविडेंड विल नॉट बी अलाउेबल पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग HRK's limited taxable trading profit. Accordingly, in order to have 7,000 of post-tax profits available for distribution, HKR will have to pay corporation tax of what? ये बस बोलना चाहते हैं कि अच्छा, इनको। मतलब तू अगर इतने का हम्म, डिविडेंड तू अगर दे रहा है तो तेरे पास इतने प्रॉफिट्स है जिसका तू इतना कॉर्पोरेशन टैक्स भर रहा है। ओके। हाँ, बस उन्होंने फालतू का कैलकुलेशन किया है। अभी ये बुक कीपिंग है, ये पढ़ ले। वन सेट। HKR Limited must retain the records required to make a complete and correct corporation tax return. This will include evidence of transactions, example receipts, expenses, and sales and purchases of goods, and supporting documents, example accounts, books, and contracts. The records must usually be retained until 6 years. Good. After the end of the relevant accounting period, HMRC imposes a penalty where the insufficient records are retained. The maximum penalty is 3,000 for each accounting period. Perfect. ये क्या है नीचे? नाइस। टैक्स सीनियर। वो सिग्नेचर देना रहता है, क्योंकि तूने मतलब वो लिखा है ना, तूने पूरा मेमोरेंडम या जो भी तूने आओ चीज आओ लिखी है, आओ तो ऐसा ओ, सिग्नेचर